not a game, it's a rich thing. میری زندگی گناہوں کا مجموعہ ہے اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ وہ گناہ کیا ہے جو خداوند کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے. وہ لگ بھگ 30 سال کی عورت تھی جو اپنی دلکشی، نزاکت، خوبصورت لباس اور رکھ رکھاؤ کے باعث آرام سے لڑکیوں کی صف میں جگہ بنا سکتی تھی. اس نے موتیہ رنگ کا لباس اور کانوں میں لباس کے ہم رنگ جو ٹاپس پہن رکھے تھے وہ اس کی سنہری رنگت پر بہت جچ رہے تھے. شخصیت کی دلکشی اور خوبصورتی کے برعکس اس کے چہرے پر گہری اداسی طاری تھی. عورت، خصوصاً مشرقی عورت، اپنی عزت کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی اپنی عزت پر آنچ نہ آنے دے. عزت کا سودا کرنے والیوں کے پاس اس کے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، لیکن میری مجبوری کوئی نہیں تھی. میرے ماں باپ ساری ضروریات بن کہے پوری کر دیتے تھے. ابو اور بھائیوں سے مناسب جیب خرچ بھی ملتا تھا، لیکن یہ سب میری لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھا. میں ان امیر زادیوں کی طرح رہنا چاہتی تھی جو مہنگی گاڑیوں میں یونیورسٹی آتی تھی، جن کے پرس میں اتنے نوٹ ٹھسے ہوئے ہوتے کہ موڈ اچھا ہونے پر پورے گروپ کو اکٹھا کر کے کسی اچھے ریسٹورانٹ میں ٹریٹ دینے لے جاتی. اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی ان تمام یونیورسٹی فیلوز کے چہرے گم رہے تھے جن کی چکا چوند زندگی نے اسے ہوس زر میں مبتلا کر دیا تھا. مجھے وہ مڈل کلاس لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی جن کی باتوں سے بھی ان کی تنگی داماں کا اظہار ہوتا تھا. کسی کو گھر لوٹنے کی جلدی ہوتی کہ اس کی واپسی سے پہلے ہی گھر میں ٹیوشن پڑھنے والے درجن بھر بچے آئے بیٹھے ہوتے. کوئی اس غم میں دبلی ہوئی جا رہی تھی کہ ابا کی ریٹائرمنٹ نزدیک ہے، آگے گھر کے اخراجات کا کیا ہوگا. کسی کی نیندیں اسی خیال سے اڑی رہتی تھی کہ اس کی شادی پر اگر شاندار جہیز نہیں دیا جائے گا تو سسرال میں ناک کٹ جائے گی. مجھے یہ سب باتیں سن کر بہت کوفت ہوتی. باتیں تو وہ ہوتی تھی جن میں دبئی کے شاپنگ مالز کی تیز روشنیاں جگمگاتی تھی، لندن آئی سے پورے شہر کے نظارے کی روشنی چھلکتی تھی، پیرس کی بہتی نہریں رواں ہوتی تھی اور دنیا کے ہر اونچے ریسٹورانٹ میں کھائے جانے والے کھانوں کی لذت و خوشبو رچی بسی ہوتی تھی. لیکن المیہ یہ تھا کہ جیسے میں خود کو اپنے مڈل کلاس فیلوز کے ساتھ فٹ نہیں کر پاتی تھی، ویسے ہی اعلیٰ طبقے کی لڑکیوں میں بھی فٹ نہیں ہو پاتی تھی. اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ ہی ایک سرد آہ خارج ہو گئی. قصوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. انٹرنیٹ سے حاصل کردہ معلومات اور اپنے تخیل کی بنیاد پر میں بہت پراثر قصے سنا سکتا، لیکن میں جانتی تھی جب تک ان قصوں کے ساتھ بری جیب کا وزن شامل نہ ہوگا میری بات ہلکی ہی رہے گی. گروپ کی ایک لڑکی ٹینا نے میری اس کمزوری کو بانپ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس راہ پر لے جہاں قدم قدم پر خوبصورتی اور جوانی کی منہ مانگی قیمت دینے والے کھڑے تھے. ہم مڈل کلاس نوجوانوں کے والدین بہت بولے ہوتے ہیں. میں نے گھر میں اعلان کیا کہ خود انحصاری کی راہ اختیار کرنے کے لیے میں نے یونیورسٹی کے بعد چند بڑے ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی ہے، تو کسی کو اس پر اعتراض نہ ہوا. اس پیسے کے زور پر میں نے بہت عیش کیے اور اپنی من پسند زندگی جینی شروع کر دی. شروع میں کسی نے نوٹ نہیں کیا، لیکن میرے ٹھاٹ باٹ نے گھر والوں کو چونکانا شروع کر دیا. اماں کو ریدنے لگی، بھائی سوال جواب کرنے لگے، لیکن پیسے نے مجھے اتنا اعتماد دے دیا تھا کہ سب کی آنکھوں میں آرام سے دھول جھونکتی رہی. گریجویشن کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں پرسنل سیکرٹری کی جاب تو میرا اعتماد ایک اور ہائی لیول پر لے گئی. اس عرصے میں ابا فوت ہو گئے. اماں نے کوشش کی کہ میری شادی کر کے مجھے کسی گھونٹے سے باندھ دے، لیکن میں نے پروں پر پانی نہ پڑنے دیا. پھر میں نے آفس دور پڑنے کے بہانے الگ اپارٹمنٹ لے لیا. بعض کے ساتھ شہر اور ملک سے باہر جانا میرا معمول بن گیا. بعض کے دوست بھی میرے حسن کے دیوانے تھے اور ان کی دیوانگی کا فائدہ مجھے اپنے بڑھتے ہوئے بینک بیلنس کی صورت میں حاصل ہو رہا تھا. اماں مری تو ان دنوں میں ملائیشیا میں تھی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی. واپسی پر تحائف سے لدی پھندی گھر ان سے ملنے پہنچی تو پتہ چلا انہیں مرے چوتھا دن تھا. بھابھیوں نے بہت تانے دیے، بھائیوں نے منہ پھیر لیا. سچ پوچھے تو مجھے ان سے نہ ملنے کا کوئی خاص دکھ نہیں تھا. میں نے اپنی زندگی خود جینے کا فیصلہ کیا تھا اور فیصلے پر کبھی پچھتائی نہیں. لیکن کہ آگے ذرا توقف لیا، پھر آہ بھرتے ہوئے دوبارہ بولنے لگی. آج کل اماں بہت زیادہ میرے خوابوں میں آنے لگی ہیں. بات نہیں کرتی، روٹھی سی رہتی ہیں، لیکن روزانہ خواب میں آتی ضرور ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں. شاید انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ناقابل علاج بیماری نے میرے وجود میں اپنے پنجے گاڑ لی ہیں اور اب میں اس دنیا اور اس کی رنگینیوں کے لائق نہیں رہی. میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں خدا کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر جی اور اپنے لیے زندگی کی وہ راہ منتخب کی جو عام لوگوں کے حساب سے گناہ آلودہ تھی. لیکن میں خوش اور مطمئن ہوں کہ میں نے زندگی اپنی مرضی سے من چاہی گزار دی اور اس زندگی میں سب کچھ حاصل کیا جس کے میرے دل میں خواہش تھی. اس خوبصورت زندگی کے بدلے خدا اگر مجھے جہنم میں بھی ڈال دے تو میں اس سے شکوہ نہیں کروں گی، لیکن وہ اپنے مہربان ہونے کا ثبوت بھی تو دے سکتا ہے اور اپنی اس بندی کو جس نے دنیا میں جنت کے مزے لوٹے ہیں وہاں بھی اس دوسری دنیا میں اپنی جنت میں رکھ سکتا ہے. اپنے حجرے میں بیٹھے پادری کے لیے شاید پہلا موقع تھا جو اپنے اعترافی حجرے میں بیٹھ کر اعتراف گناہ کرنے والے کسی فرد کو اپنے گناہ پر مطمئن ہی نہیں اگلی دنیا کے لیے پر امید بھی پا رہا تھا. اس کا دل چاہا کہ وہ ذرا سا پردہ کھسکا کر اس عجیب و غریب عورت کو دیکھے، لیکن پھر اس نے کسی نہ کسی طور پر خود کو روک لیا. ایسا کچھ کرنا اس کے اپنے مقام کے منافی تھا.
उधर वो औरत सब कुछ कह देने के बाद हल्की फुल्की हो गई थी और पुरसुकून चेहरे के साथ बाहर निकली थी। वो अपने आप में इतनी मगन थी कि इसने अपने इर्द गिर्द के मनाजिर और अफराद में से किसी को देखने की जरूरत महसूस नहीं की थी और सर झुकाए सीधी पार्किंग की तरफ बढ़ी। आजकल मुस्तकिल इसके ताक़ुब में रहने वाला शख्स अलबत्ता उलझन में था कि इसका पीछा करे या वापस अंदर जाकर इसके एतराफ़े गुनाह के बारे में जानने की कोशिश करे। ये छठा बच्चा है जो 15वें दिन के अंदर शहर से अगवा हुआ है और पुलिस इनमें से किसी एक बच्चे का सुराग लगाने में कामयाब ना हो सकी। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है? मीडिया पर भूचाल आया हुआ है। लोग पुलिस पर उंगलियां उठा रहे हैं कि पुलिस अब तक किसी एक बच्चे का भी सुराग लगाने में कामयाब ना हो सकी, इसलिए मुजरिमों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। DIG शहर के मुख्तलिफ थानों के SHOs को सामने बिठाए इन पर बरस रहे थे। ये सब इस शायान सिद्दीकी का किया जा रहा है। वो अपने NGO के सहारे मैदान में उतरा है और दूसरे बच्चों के वालिदैन को भी अपने साथ मिला लिया है, वरना इससे पहले वो सिर्फ थाने आकर रोते पीटते थे और तसल्ली दिलासे सुनकर अपने घरों को वापस लौट जाते थे। मोटी तोंद वाले और बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक SHO ने यूं कहा जैसे सारा कसूर एहतजाज करने वालों को। वो लोग इसलिए आपकी झूठी तसल्लियों पर खामोशी से वापस पलट जाते हैं कि इन बेचारे गरीब और अनपढ़ लोगों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब इनको एक रास्ता दिखाने वाला मिल गया है और आप यकीन रखें कि इन लोगों के खामोश होने में इतना वक्त लगेगा कि इनका एहतजाज की लहर की आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया के जरिए मुल्क की सरहदें पार कर जाएंगी। DIG साहब के लहजे में तंज की आमेज़श थी। उन्होंने ज़रा तवक्कुफ किया, फिर SHO की आंखों में आंखें डालकर जताने वाले अंदाज में बोले, बच्चों के वालिदैन ने ऐलान कर दिया है कि अगर पुलिस की तरफ से कोई काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं की गई तो पीर से वो तादमे मर्ग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कुछ ने तो खुद सोजी तक की धमकी दी है। हमें इनसे मुज़ाकरात करने होंगे सर। इन्हें समझाना होगा कि मुजरिम बहुत चालाक और मुनज़्ज़म है। इनके खिलाफ रातों रात कोई कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं। इन्हें हम पर इस तरह प्रेशर बिल्ड करने के बजाय हमें काम करने के लिए कुछ मोहलत देनी चाहिए। ये अपने हम मनसब पुलिस वालों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और फिट SHO था, जिसकी वर्दी और जूतों की सफाई भी काबिल तारीफ थी। मसला ये है कि इनसे मुज़ाकरात करेगा कौन? एहतजाज करने वालों का तो ये हाल है कि पुलिस को देखते ही नारेबाजी और पथराव शुरू कर देते हैं। इस वकील शायान सिद्दीकी को इसके NGO के जरिए यहाँ बुलवाया जा सकता है। ये सारा हंगामा इसी का शुरू करवाया हुआ है। वो चाहेगा तो उसे रुकवा भी देगा। तजावीज़ और तबसरों का सिलसिला जारी था। आपकी तजवीज़ अच्छी है, हमें सारे हंगामे को कम करने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं इससे अपनी मुलाकात तय करवाता हूँ। आप लोग इस अरसे में अपनी अपनी कोशिशें जारी रखें और मिल बैठ कर कोई ऐसा लाहे अमल तय करें जिससे कम से कम मुजरिमों की निशानदेही हो सके। हौसला रखें आप ही, अल्लाह ने चाहा तो हमारी हानि ज़रूर मिल जाएगी। इसके मिलने तक मैं किसी को सुकून से नहीं बैठने दूंगा। शायान सिद्दीकी खुद से चंद साल बड़ी बहन को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। बहन का हर आंसू इसके दिल पर अंगारे की तरह गिर रहा था, लेकिन इसकी कोशिश थी कि अपने तासुरात से तकलीफ का इजहार न होने दे। पता नहीं वो कैसी होगी शान। इन जालिमों ने मेरे बच्चे के साथ क्या किया होगा। माँ के दिल को किसी तरह करार नहीं था। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और दुआ करें कि वो इसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दुआएं तो हम सब दिन रात कर रहे हैं, पर पुलिस भी तो कुछ करे। गमो गुस्से की मिली जुली कैफियत में तेज़ लहजे पर यह तबसरा करने वाली शायान की छोटी बहन राबिया थी। पुलिस को थोड़ा बहुत झंझोड़ने में कामयाब तो हो गया हूँ मैं। मीडिया भी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। बाकी बच्चों के वालिदैन ने भी अच्छा खासा साथ दिया है। तुम्हें मालूम है DIG साहब की तरफ से आज शाम का बुलावा आया है। मुझे करता हूँ उनके साथ मीटिंग और देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं। इसने बहनों को बताया, मुझे पता है कि वहानी की बाजियाबी नहीं बल्कि हमारे एहतजाज पर बात करने के लिए आपको बुला रहे हैं। देख लीजिएगा उनकी तरफ से आप पर किसी भी तरह एहतजाज और धरना रोकने के लिए जोर डाला जाएगा। वो जो भी कहेंगे हम किसी मौसर इक़दाम के बगैर पीछे नहीं हटेंगे। इसने ठोस लहजे में जवाब दिया और अपने मोबाइल पर आने वाला पैगाम देखने लगा, जिसे पढ़कर इसके माथे पर बल आ गए। ताहम इसने पैगाम मिलने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और वक्त देखते हुए बोला, मैं अब चलूंगा, कई काम सारे अंजाम देने हैं और शाम को आप सबको प्रेस क्लब आना होगा। मोटरसाइकिल के जरिए NGO के दफ्तर पहुंचने में से ज्यादा वक्त नहीं लगा। अभी इसने पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी की ही थी कि कार के जोरदार हारन ने इसे मुतवज्जा किया। कार की ड्राइविंग सीट पर वलीद बैठा था, जो इसका हम उम्र और हमकार था, लेकिन इस एतबार से खुशकिस्मत था कि इसका ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था और वालिदैन की भरपूर सपोर्ट हासिल थी। जबकि इसका ये हाल था कि वालिद बड़ी बहन सादिया की शादी से पहले ही वफात पा गए थे और वालिदा भी साल भर पहले ही साथ छोड़ गई थी। वालिद की ग्रेजुएटी और घर की बालाई मंजिल के किराए से किसी न किसी तरह जिंदगी के मामूलात चलते रहे। इसने और राबिया ने अपनी तालीम पूरी करने के लिए बहुत कम उम्री से ही ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी थी और कुछ अर्सा कबल ही अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब हो सके थे। जल्दी से आ जा यार, फिर चलते हैं। वलीद ने इसे मुतवज्जो देकर आवाज़ लगाई तो वो इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और अगला दरवाज़ा खोलकर इसके साथ वाली नशिस्त पर बराजमान हो गया। क्या तफसील है? वलीद ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई तो इसने बेचैनी से पूछा, बच्ची कल रात को गायब हुई थी। घर वालों के बयान के मुताबिक रात गए इसके पेट में शदीद दर्द उठ रहा था। पहले घर में दवा दारू की कोशिश की गई थी, लेकिन दर्द कम ना होने की सूरत में मजबूरन बड़ा भाई इसे मोटरसाइकिल पर दवा खाने ले जाने के लिए घर से निकला। रास्ते में इसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया तो वो मजबूरन दर्द से तड़पती बहन को एक दरख्त की आड़ में बिठाकर पेट्रोल डलवाने चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो बहन गैर मौजूद थी। रात इसे ढूंढते हुए गुजरी और सुबह नदी से इसकी लाश मिली। अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक हलाकत गला घोटने से हुई है।
रात गए बहन को अकेला छोड़कर गया ही क्यों था वो अहमक। शयान को लड़के की हमाकत पर गुस्सा आ गया। पता नहीं यार, बस मुश्किल से यही सुना है कि मुश्किल से 17-18 साल का लड़का है। बाप थका हारा ब्लड प्रेशर की दवा खाकर सो रहा था तो माँ ने इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और बेटे के कहने पर बच्ची को इसके साथ भिजवा दिया। क्या हम कह सकते हैं कि ये शहर में जारी बच्चों के अगवा के सिलसिले की 7वीं वारदात है? मे बी और मे बी नॉट। वलीद ने कंधे झुकाए, फिर तजिया करने वाले अंदाज में बोला, पिछले 6 केसेस में तुम्हारी बांजी समेत जितने भी बच्चों को अगवा किया गया, इन्हें ऐसे मकामात से अगवा किया गया जहां जाना इनके रोज का मामूल था। 3 बच्चे सरकारी स्कूलों के बाहर से कहीं रास्ते में अगवा किए गए, 2 को इनके मदरसे के औकात में उठाया गया, जबकि तुम्हारी बांजी को भी स्कूल से छुट्टी में ही अगवा किया गया। बस फर्क ये था कि वो सरकारी की बजाय निजी स्कूल में पढ़ती थी और दूसरे बच्चों की तरह खुद आने जाने की बजाय माँ बाप के साथ आती जाती थी। रात जो ये बच्ची सोबिया गायब हुई है, ये तो इत्तेफाकन और बिल्कुल आउट ऑफ टाइम घर में से निकली थी। फिर ये वाहिद बच्ची है जो लाश की सूरत में बाजियाब हुई है, जबकि बाकी 6 बच्चों का तो कुछ मालूम ही नहीं कि इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। वलीद ने अपना तजिया पेश किया तो इसे लगा कि वाकई सोबिया केस मुख्तलिफ है। इसके मुकाबले में बाकी बच्चे वाकई मनसूबाबंदी के तहत अगवा किए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये बात नाकाबिले फहम थी, क्योंकि अगवा होने वाले किसी भी बच्चे का ताल्लुक खुश हाल खानदान से नहीं था, बल्कि देखा जाए तो सब के सब गरीब और सफेद पोश घरानों से ताल्लुक रखते थे। तुम्हारी बात काफी हद तक ठीक है। हानि के केस में तो मुझे एक मजीद बात खटक रही है। आप ही ने बताया था कि वो हस्बे मामूल हानि को लेने के लिए घर से निकलने ही लगी थी तो इन्हें अपने घर के दरवाजा बाहर से बंद मिला था। इस वक्त इन्हें यही लगा था कि किसी शरारती बच्चे ने बाहर से कुंडी लगा दी है। इन्हें किसी को आवाज देकर बुलाने और कुंडी खुलवाने में कुछ वक्त लगा, जिसकी वजह से हानि के स्कूल पहुंचने में देर हो गई। इसी ताहिर ने हानि को उनसे जुदा कर दिया। स्कूल की आया ने बस इतना बताया कि वो गुड़िया के बाल खरीदने का कहकर गेट से बाहर निकली थी और इसके वापस अंदर ना आने पर यही समझा गया कि वो अपनी अम्मी के साथ घर चली गई है। तेरी बांजी के केस में सरासर स्कूल वालों की बेपरवाही का दखल है। एक बच्ची जिसे इसकी वालिदा लेने आती है स्कूल के गेट से बाहर निकली ही क्यों? वलीद ने मोड़ काटते हुए स्कूल इंतजामिया पर तनकीद की। बस यार, ये गली मोहल्लों में खुले हुए छोटे छोटे निजी स्कूल्स का यही हाल है। ये ना ढंग की तालीम देते हैं ना दीगर बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मामूली हैसियत रखने वाले वालिदैन सरकारी स्कूलों के बदतरीन मायार की वजह से इन्हीं लूले लंगड़े स्कूलों पर गुजारा करने पर मजबूर है। वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो बस ऐसा ही कुछ मामला है। जहाँ रियासत अपने अवाम के हुकूक अदा ना करे वहाँ ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। वलीद ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन वो कुछ और सोच रहा था। पता है वलीद, मेरे जहन में ख्याल आता है कि इस रोज आपी के घर के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद होना किसी बच्चे की शरारत नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर ऐसी हरकत की थी ताकि आपी लेट हो जाए और हानि को स्कूल से अगवा किया जा सके। आपी का कहना है कि स्कूल के बाहर खड़े फेरी वालों से छुट्टी में कुछ न कुछ खरीद कर खाना हानि का रोजाना का मामूल था। शायद इसीलिए आया ने भी इसे बाहर जाने से नहीं रोका था, लेकिन कोई था जिससे इसके मामूल का इल्म था और इसने इससे फायदा उठाया। इस हद तक की मनसूबाबंदी से किए जाने वाले अगवा के वारदात के पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है यार। अमूमन जाती दुश्मनी या फिर अगवा बराए तावान किसी ने मांगा नहीं और दुश्मनी वाले इम्कान को तुम रद्द कर चुके हो। इस मनसूबाबंदी से किए जाने वाले अगवा के पीछे ये सब क्या हो सकता है? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई सबब जरूर है। अगर ये आम अगवा की वारदातें होती तो किसी भी उम्र के बच्चे कहीं से भी अगवा किए जाते, लेकिन इन केसेस में बच्चों को इनके घर के बाहर से आने जाने वाले मखसूस औकात में अगवा किया गया है और ये कि सारे बच्चे एक ही एज ग्रुप के हैं। वाकई वलीद सुनकर हैरान हुआ। मैंने अगवा की सारी FIR की नकल देखी है। तमाम FIR में बच्चों की उम्रें तकरीबन 11 साल दर्ज है। ये सोचने की बात है कि एक एज ग्रुप के बच्चों को अगवा क्यों किया जा रहा है। कोई खास मकसद तो जरूर है अगवा करूंगा, फिर तो हमें इस मकसद का खोज लगाना होगा। मकसद मालूम हो गया तो मुजरिमों की शनाख्त के लिए भी कोई इशारा मिल ही जाएगा। वलीद पुरजोश हुआ। मुझे ऐसा ही लगता है, इसने तायद की और फिर बाहर के मनाजिर की तरफ मुतवज्जो हो गया। गाड़ी सड़क से हटकर एक आबादी में दाखिल हो रही थी। वलीद ने एक दो जगह रुककर एड्रेस मालूम किया और बिलाहिर एक गली से बाहर ले जाकर गाड़ी रोक दी। ये गली भी तंग थी और वहां से भी गली के एक मकान के बाहर मौजूद लोगों का हजूम वो देख सकते थे। आओ चलकर देखते हैं। इन्हें अंदाजा हो गया कि वो हलाक होने वाली लड़की का घर है, जहाँ अजीजों कारब और अड़ोस पड़ोस ताजियत के लिए जमा है। वो दोनों भी गाड़ी लाग करके हजूम में शामिल हो गए। घर के अंदर से खवातीन के रोने धोने की आवाजें आ रही थी, जबकि मर्द हजरात में से कुछ बाहर दरियों पर बैठे थे तो कुछ इधर उधर ट्रोलियों में खड़े सरगोशियों में गुफ्तगू कर रहे थे। दरियों में बैठे अफराद में से एक उधेड़ उम्र मर्द और नौजवान लड़का फौरन ही इनकी नजरों में आ गए। मर्द के चेहरे पर गम के गहरे साए थे और आने वाले ने इसे गले लगा लिया या वैसे ही शाने पर हाथ रखकर तसल्ली दे रहे थे। लड़का सर झुकाए बिल्कुल चुपचाप बैठा था। स्याह रंग के मैले से लिबास में इसकी गहरी सांवली रंगत कुछ और भी दब गई थी। देखने में वो इतना बुरा ना लगता था जितना अपने मैल और चिकनाई से अटे हुए लंबे बालों की वजह से लग रहा था। इसे देखकर साफ लग रहा था कि वो कई दिनों से नहाया नहीं है, बल्कि शायद मुंह हाथ भी साबुन से धोने का तकल्लुफ नहीं किया। शायद यही मरने वाले का भाई है। वलीद ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। वही है, हमाकत कर बैठा है और अब किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वलीद की सरगोशी करीब
खड़े लड़के ने सुन ली और बेसाख्ता बोल पड़ा, तुम कौन हो? शयान ने इसकी तरफ देखा और सवाल किया, मैं इनका पड़ोसी हूँ जी, ये हाशिम मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था, लेकिन फिर इसके अब्बा बीमार रहने लगे तो घर वालों ने इसे स्कूल से उठाकर मैकेनिक के पास भेज दिया। बरसों से काम कर रहा है पर अभी पूरा मैकेनिक नहीं बना। ये कहता है कि उस्ताद काम सिखाने में टाल मटोल से काम लेता है और बहुत रगड़ा लगाकर मुश्किल से कोई ये गुर सिखाता है, पर इसका अब्बा इसे हर चौथे पांचवें दिन इस बात पर गालियां देता है कि इसके उस्ताद को इससे शिकायत है कि ये जी लगाकर काम नहीं करता और बहुत निकम्मा शागिर्द साबित हुआ है। लड़का बड़ा बातूनी था, छोटे से सवाल के जवाब में इतना लंबा जवाब दे डाला था। आदात का कैसा है? मेरा मतलब है पान सिगरेट नशा या कोई दूसरी बुराई तो नहीं है इसमें। स्कूल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, बड़ा साफ सुथरा हीरो बनकर रहता था। मैकेनिक के पास बैठने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता हुलिया बिगड़ता चला गया। मैंने कई बार इसे सिगरेट पीते हुए भी देखा है, अब ये पता नहीं कि वो सादे सिगरेट होते हैं या भरे हुए। इसने शानिश का जवाब दिया तो शयान का दिल दुख से भर गया। लड़का इन्हें मजीद मालूमात फराहम कर रहा था। इनकी तवज्जो लड़के से ज्यादा पुलिस वालों की तरफ मबजूल थी। पहले वो तादाद में 2 दिखाई दे रहे थे, अब 6-7 हो चुके थे। इनकी हरकतों से में कुछ बेचैनी सी दिखाई दे रही थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ, मैं यहाँ रहकर कफन दफन का इंतजाम करूंगा। मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ आने? तुम्हें कुछ करना है तो जाकर इसके कातलों को गिरफ्तार करो। पुलिस वालों की बात सुनकर वो रद्द अमल में उछल कर खड़ा हो गया और मुश्तिल लहजे में तेज तेज बोल रहा था। इसके अल्फाज से पुलिस वालों का इरादा समझते हुए इसका बाप और दूसरे लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। हाशिम के बाप ने तवक्को के मुताबिक इसके गिर्द बाजुल पेड़ दिए कि पुलिस वाले इसे लेकर ना जा सके। बात समझे बुजुर्गो, हम इसे कोई गिरफ्तार नहीं कर रहे, बस बयान और तफ्तीश के लिए साथ लेकर जा रहे हैं। ये हमें मुकम्मल मालूमात देगा तो हम लड़की के कातलों तक पहुंच सकेंगे ना। एक सब इंस्पेक्टर ने माकूलियत से समझाने की कोशिश की। इस मौके पर वलीद और शयान ने भी आगे बढ़कर पुलिस वालों की हिमायत की। कुछ दूसरे लोगों ने भी समझाया तो हाशिम का बाप इसे पुलिस वालों के साथ भेजने पर राजी हो गया। हाशिम अलबत्ता अभी मजामत कर रहा था, लेकिन इसकी मजामत को पुलिस वाले हाथों में लाए बगैर इसे अपने साथ खींच कर ले गए। वलीद और शयान पुलिस की रवानगी के बाद कुछ देर वहां रुके और चंद जरूरी मालूमात के हसूल के बाद वहां से रवाना हो गए। रवाना होते वक्त दोनों के जहन में यह ख्याल बुरा था कि बेशक ये केस अफसोसनाक और थोड़ा सा पुरस्कार था, लेकिन बाकी 6 बच्चों के अगवा से मुशाबत नहीं रखता था। वसीओ और इस हाल तेज और मुतहरिक रोशनी से जगमगा रहा था, साथ ही कान फाड़ म्यूजिक से हाल में रखी गोया हर शय झंझना रही हो, लेकिन वहां मौजूद जोड़ों पर लगता था कोई असर ही नहीं हो रहा। वो रंग बिरंगे मशरूबात नोश करते हुए बेफिक्री से खुशगपियां और कहके लगाने में मसरूफ थे। हमारी खूबसूरत और आज़ाद दुनिया में खुशामदीद। इस दुनिया में ना कोई किसी को बुरा कहता है और ना किसी पर सवाल उठाकर इसकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देता है। हमने ये दुनिया हंसने खेलने और खुलकर जीने के लिए बनाई है। तुम भी इस दुनिया में अपनी मर्जी से जैसे चाहो जियो। ये अल्फाज अभी शहनीला के साथ हाल में दाखिल होने वाले वासिफ जंजुआ ने इसके कान में कहे थे। शहनीला और शहनी की कमर में हाथ डाले वो इस हद तक खुशी से सरशार था कि महसूस ही नहीं कर सका था कि तेज मुतहरिक रोशनी और मौसीकी ने पल भर के लिए शहनीला को चकरा कर रख दिया है। वो अपने डगमगाते कदमों को संभालने के लिए इसने बाकायदा वासिफ का सहारा लिया था। ये दुनिया मेरे लिए बहुत अनोखी है, उम्मीद करती हूँ ये अनोखापन मुझे लुत्फअंदोज होने का भरपूर मौका देगा। वासिफ के सहारे ने इसके कदमों को मजबूती अता कर दी थी और इसने जहन में मौजूद हर हदशे को जहन से झटक कर सिर्फ और सिर्फ जीने का फैसला किया था। आओ तुम्हें दोस्तों से मिलवाता हूँ। वासिफ ने इसकी पतली बरहना कमर में हाथ डाले और इसे लेकर हजूम दोस्तान की तरफ बढ़ गया। आज की शाम इसने शहनी को खुसूसी तैयारी करवाई थी। चंद इंच के ब्लाउज के साथ साथ पहनी गई महीन जॉर्जेट की साड़ी पर इतना भारी काम था कि शहनी को इसे संभालने में मुश्किल पेश आ रही थी। अगर वासिफ इसे सहारा ना दिया होता तो वह शायद खुद से चलने फिरने में मुश्किल महसूस करती। वासिफ के सहारे चलती वो इसके सारे दोस्तों से मिलती रही। इन दोस्तों ने मर्दोजान की तफरीक के बगैर इसे गले लगाकर हैर सगाली के अल्फाज अदा किए। इन सब के अंदाज में महसूस की जाने वाली बेबाकी थी। इससे ये सब कुछ थोड़ा नागवार महसूस हुआ, लेकिन इसने अपनी नागवारी को जाहिर न होने दिया कि ये असूल तो उससे भी मालूम था कि हर शय की इंसान को कीमत अदा करना पड़ती है। वो भी इस आज़ाद दुनिया में कदम रखने की कीमत अदा कर रही थी। ये हीरा कहाँ से लाए वासिफ? इस कोहे नूर के आगे तो आज सबकी चमक दमक मान पड़ती जा रही है। क्या मेरी भी? वो अपनी शान में अदा किए गए तारीफ़ी कलमात से पूरी तरह लुत्फअंदोज भी नहीं हुई थी कि एक पैकरे राना ने दरमियान से बात उचकली। वो सचमुच इतनी हसीन थी कि शहनीला को अपना आप इससे कमतर लगा। इस मुजस्सिम हुस्न के मुकाबले में अगर कोई बरतरी हासिल थी तो वो सिर्फ ये थी कि वो इसके मुकाबले में हासिल कम उम्र थी, और कम उम्री का भी अपना एक हुस्न होता है। आपके आगे कब किसी का चिराग जला है जनाब? आपको हम हमेशा इस मुकाबले से बाहर रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आपको मुकाबले में शामिल किया तो फिर किसी दूसरे के फर्स्ट आने के इम्कानात सिफर होंगे। वो शख्स शहनी को छोड़कर इसकी तारीफ में रतबुल लिसान हुआ। हर चिराग ने एक न एक दिन बुझना ही होता है फरी, और सच ही है कि मैं अब चिराग की आखिरी शब। अब आपकी महफिलों को इसी जैसे चिरागों ने रोशन करना है। शहनी इस औरत के हस्ते में मुतला होने लगी थी कि इसके नरमो नाजिक शीरीं अल्फाज ने इसका दिल खुश कर दिया, और खुशदिली से मुस्कुराते हुए इसने औरत की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। लगता है शोहरत की देवी तुम पर धन बरसाने को है। ये चेहरा ऐसा नहीं है जो ज्यादा दिन लोगों की नजरों से ओझल रह सके। इसने गर्म जोशी से शहनी से हाथ मिलाया और पेशीन गोई की। इसके अल्फाज पर शहनी का दिल जोर से धड़क उठा। वो अपने दिल में शोबिस की दुनिया में आने का अरमान छुपाए बैठी थी। इस अरमान की राह में सबसे बड़ी रुकावट इसकी दकियानुस सोच रखने वाला खानदान था।
اگر خاندان کا کوئی فرد اسے اس حلیے میں اس محفل میں دیکھ لیتا تو اس صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا یا پھر وہ اسے شوٹ کر دیتا. لگتا ہے تمہارا خواب پورا ہونے کے دن آ گئے ہیں. میڈم ماریا ایک بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلاتی ہیں. انہوں نے تمہیں اپنے کسی ایڈ میں لے لیا تو سمجھو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ گی. واصف سے اس کا تعلق اتنا پرانا نہیں تھا جتنا گہرا تھا. چند ماہ کی دوستی میں اس نے واصف کو اپنے خوابوں خیالوں کے متعلق سب کچھ بتا ڈالا تھا اور اس نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے سارے خواب پورا کرے گا. میں تو خود حیران ہوں کہ یہ اتنے حسین ہو کر اسکرین سے کیوں دور ہیں. کلائنٹس کو تو انہیں اپنے ایڈ میں لینے کے لیے تجوریوں کے منہ کھول دینے چاہیے. انہیں دولت کی کمی نہیں. سچ تو یہ ہے کہ یہ جس کا ہاتھ تھام لے اسی پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے. واصف کے جواب نے اس کی آنکھوں کے رنگ اتار دیے. متوسط طبقے کی لڑکی جس کی آنکھوں میں شہرت اور دولت کی بھوک تھی اتنی خوش ہوئی کہ اس محفل میں تتلی بن کر تھرکنے لگی. پھر یہ تھرکتی تتلی روانگی تک بنتے انگور کے نشے سے اتنی بوجھل ہو چکی تھی کہ واصف کو باقاعدہ اپنے بازو میں بھر کر اسے گاڑی تک لے جانا پڑا. اس حال میں تم ہاسٹل تو نہیں جا سکو گی. ایسا کرتا ہوں تو میں اپنے ساتھ گھر لے چلتا ہوں. واصف نے اسے تشویش سے دے کر تجویز پیش کی. جہاں دل چاہے لے چلو مجھے تو بس اب سونا ہے. اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا اور واصف کے شانے پر سر ٹکا دیا. اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا. ہوش سے بیگانہ حسینہ کی ساڑی کا پلو اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا اور جو تھوڑا بہت چھپا رہ گیا تھا وہ بھی عیاں ہو گیا تھا.